Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a wonderful day today. We are expecting the Federal Health Minister, and we are going to do a short presentation. We welcome Abdullah Feroz Saab from Burn Center. The journey of Samaan-e-Shifa Foundation started only a few years ago from idea that healthcare delivery is out of reach of masses in Pakistan and many developing countries around the world. According to WHO, health is a basic and fundamental human right. Obviously, it is the basic responsibility of federal government and provincial government to provide health facility to all population. But in Pakistan, it is the private sector who is involved in providing these basic facilities. For healthcare, there are four important pillars: human resource, including doctors, physiotherapists, nurses, paramedical. Alhamdulillah, Pakistan is very much self-sufficient in providing human resource. Second important pillar is pharmaceutical. And I'm glad to say that Made in Pakistan pharmaceutical are on the rise. Couple of decades ago, it was multinational, but 80%, Abdullah Feroz Saab, including many national companies, 80% of pharmaceutical product in Pakistan are now made in Pakistan. So, uske liye clap. Infrastructure, clinics, operation theatre, ICU, that's very important. And finally, the fourth important pillar is medical device. इनमें से एक भी पिलर अगर नहीं होगा तो हेल्थ केयर डिलीवरी नहीं हो सकेगी. प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में, कराची में बर्न सेंटर हो, इंडस हॉस्पिटल हो, POB हॉस्पिटल हो, and a lot of other hospitals are providing state-of-art services. I welcome Professor Tipu Sultan sir. प्लीज़ फ्रंट पे आ जाएं एंड सर आ जाएं प्लीज़. मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं एंड टीचर्स ऑफ टीचर हैं एंड इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेसर्स हैं एंड ख़ास तौर पे ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में करके दिखाया. पहला ICU सिविल हॉस्पिटल में बना के दिखाया और उस ICU में दाखिला एंट्री फ्री एंड कोई ख़र्चा नहीं एंड स्टेट ऑफ आर्ट. तो चीज़ें हैं बारी भाई ने करके दिखाया. POB हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट आई की ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं. तो आज समान-ए-शिफा पेपर पे नहीं है, आज समान-ए-शिफा आइडिया नहीं है, आज वी आर एबल टू डिलीवर एंड आज ही इसी हॉल में हम डिलीवर भी करेंगे और हम ऑलरेडी कर रहे हैं. वी हैव चैम्पियंस ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर सिटिंग इन द फ्रंट रो विद 2 decades of experience. Now he is not just one team, he is an army. He has a field that from idea to finished product we are going to have. Today, we are going to have the Federal Health Minister. Today, we are going to have the regulatory authority. And today, first time, we are going to have the Idare and civilian working together for the healthcare. And I welcome the Connect Tech team. We have Arsalan Siddiqui Saab. And very shortly, we'll have the CEO of Connect Tech and SciTech, Aqil Ahmed, who will be shortly coming. जो R&D facilities इदारों के पास है वो प्राइवेट सेक्टर सोच भी नहीं सकता. एंड उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपने देखा है इसी साल हमने मई में मुंह तोड़ जवाब दिया है एंड इस मुंह तोड़ जवाब की वजह से पाकिस्तान की वैल्यू जो है दुनिया में अब रेलेवेंट हो गई है. अब सऊदी अरब भी जो है हमसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहा है, कतर भी बात कर रहा है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ भी बात करते हैं. तो जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब इनोवेशन होता है, जब हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं. अनफॉर्चुनेटली मेडिकल डिवाइस में
5% local manufacturing, 95% import. We spend $2 billion in importing medical devices. So Saman-e Shifa is the only organization in Pakistan which is connecting the government, the regulatory authority, the industry and academia. And we focus on only one thing. We focus on local manufacturing of medical devices of international standard, both for local consumption as well as for export. अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक टारगेट सेट किया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपोर्ट से, अब्दुल्ला भाई, $30 बिलियन का उन्होंने टारगेट सेट किया है कि इन नेक्स्ट 10 years pharmaceutical industry should be exporting pharmaceutical product worth $30 billion. मैं मुस्तफ़ा भाई अभी यहाँ आएंगे and I will add कि consider medical device for local manufacturing as well as export. We set up a target of $10 billion. उनके सामने मैं कुछ recommendations करूँगा. The regulatory authority, the federal government, the provincial government give incentive to private sector, ease of business करें, raw material पे टैक्स ख़त्म करें, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे टैक्स एग्जेम्पशन दें, टैक्स हॉलीडे दें, टैक्स इंसेंटिव दें, इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट करें. सो वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. शुरू में मुश्किलात होंगी. शुरू में यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी मेडिकल डिवाइसेस मर्सिडीज़, BMW और ऑडी जैसी होंगी. टोयोटा कोरोला एंड ऑल्टो जैसी तो बन जाए ना. ये मेहरान भी आपको कराची से चाइना के बॉर्डर पे लेके जाएगी. उसमें एयर कंडीशन भी होगा, 4 पहिए भी होंगे, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, अम्मी भी होंगी, वो काम करेगी. तो हम ये चाहते हैं कि कल्चर ऑफ मेड इन पाकिस्तान, वी शुड प्राउडली यूज़ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट. हम ये कल्चर बनाएं. देखिए हम क्या कर रहे हैं समान शिफा. वी आर वर्किंग एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म. एक तो ये कि जो इम्पोर्टर्स हैं, एचडैप के मसूद साहब हैं एंड इंटायर टीम है, वी आर नॉट स्टॉपिंग देम फ्रॉम इम्पोर्टिंग. ये हमारा काम नहीं है. हम उनको सिर्फ इनकरेज कर रहे हैं कि आप अटेम्प्ट करें, जो चीज़ें आप इम्पोर्ट करें वो पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करें. हम आपको फैसिलिटेट करेंगे. हम क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे. हम एडवोकेसी का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड वी प्ले अ रोल ऑफ एंडोर्समेंट. एंडोर्स कौन करेगा? जो वेंटिलेटर है, उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं. अगर प्रोफेसर टीपू सुल्तान यहाँ के खड़े होकर कहते हैं कि ये जो वेंटिलेटर पाकिस्तान में बना है एज गुड एज एनी इंपोर्टेड वेंटिलेटर इन द वर्ल्ड, इनका ये कहना ही काफ़ी है. एंड देन Pakistan Society of Anesthesia will be prepared to write down on their letterhead, this made in Pakistan ventilator approved by DRAB. We have used it and it is safe and effective to be used. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चाहे वो शिफा इंटरनेशनल हो, चाहे वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आगा खान हो या लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हो. क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब टेंडर निकलता है तो उस टेंडर में आता है FDA एंड CE मार्क. मैं वेलकम करता हूँ सईद अल्लाहवाला एटको कंपनी के, हु इज बीन अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ समाने शिफा फाउंडेशन फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द बिगनिंग. एंड यही वो लोग हैं जो कि हमें इनकरेज भी करते हैं. यही वो लोग हैं जो कि इम्पोर्टर्स हैं. एंड यही वो लोग हैं जो कि पहला कदम रखेंगे मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. तो जैसे मैं कह रहा था कि आईसीयू की मेडिकल डिवाइस, अब फिर हम आते हैं कार्डियोलॉजी की मेडिकल डिवाइस. वी हैव ए चैम्पियन जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, PhD बायोमेडिकल इंजीनियर. आज वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे. उन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ड्रैब अप्रूव कार्डियक स्टेंट एंड कैथेटर एंड बलून बनाए. उनके लिए प्लीज़ तालियां. अब वो इंट्राक्रेनियल स्टेंट बना रहे हैं
जो स्ट्रोक के पेशेंट, फालिज के जो पेशेंट हैं, उनके फालिज को रोकने एंड कम करने के लिए इमीडिएटली ये बना रहे हैं यूएस के फिजिशियंस की रिक्वेस्ट पे। तो इनोवेशन जो हो रही है फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, एंड मुख्तलिफ जगह हमारे पास चैम्पियन टीम मौजूद है, इनके पास मटीरियल इंजीनियर मौजूद हैं, इनके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है। ठीक है, द गुड न्यूज़ इज़ मुस्तफ़ा कमाल इज़ ऑन द वे एंड आई विल बी गोइंग डाउन टू वेलकम हिम, एंड देन जैसे ही वो आते हैं तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन 5 से 8 मिनट की मैं दूंगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय डॉक्टर उबैदुल्लाह मलिक, who is the CEO of DRAP, and inshallah today Saman Shifa Foundation and DRAP is going to sign a MOU of academic collaboration. ये आज तक ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं है। तो दिस इज़, आज आप जम के बैठें और देखें कि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हुई है जो आज इस हॉल में होगी। तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल डे है।